Jai Hind students, this is Vivek Srivastava sir and I am here with second video of chapter 2 related to class 7th geography. Okay, so beta that is class 7 not class 6, right? So the chapter is will continue with the topic that is rock and minerals. So just we have to know that what are rocks, how they forms and how many kinds of rocks are available. After that, what are minerals. So without wasting any time, let me continue from the book. So the earth crust is made of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up earth called earth crust is called a rock. Okay, it means any natural mass of mineral that matters to make earth crust. In the previous video I have told you what is the crust. Crust is the uppermost layer of the earth. Okay, so rocks can be different in color, size and texture. Okay, रॉक्स कैन बी डिफरेंट. तो जानना ये है कि रॉक्स होते कितने प्रकार के हैं, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, रॉक्स आर मेनली थ्री टाइप्स. रॉक्स आर मेनली थ्री टाइप्स. इग्नेशियस रॉक, first one igneous rock, in Hindi you can say it Agneya shell. Okay, I am writing on the board, you can note it down. Okay, igneous rock, it means Agneya shell. Agneya. Okay, the number 2 is sedimentary rock. Okay, sedimentary rock. Sedimentary rock, that is Ausadi shell. What is meant by Ausadi shell? I am telling in you video. Okay, I will tell. Ausadi shell. And the third one is metamorphic. Metamorphic rock. It means रूपांतरित और कायांतरित. Okay, रूपांतरित cell. So there are three types of rocks, that is igneous, sedimentary and metamorphic. Then what is igneous and what is sedimentary and what is metamorphic? See from the book, when the molten magma cools. Okay, let me explain in Hindi. Okay, you can easily understand in Hindi. So what is igneous? Igneous and Agneya. Agneya is from word Agni. आप जानते हैं अग्नि मीन्स क्या होता है? अग्नि मीन्स आग. तो igneous रॉक जो है ये आग से बनता है. ठीक है, ये आग से बनता है, इसी इसके नाम आग्नेय सेल रखा गया है. इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा बट हिंदी में आप समझ लो. igneous रॉक मीन्स आग्नेय सेल और ये अग्नि से या आग से बना है. अब अग्नि कहां से आई? तो आप लोगों ने सुना होगा ज्वालामुखी. ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट जब भी होता है तो ज्वालामुखी से जो भी मगमा निकलता है, ठीक है, मगमा का पिघला हुआ रूप जब अर्थ पे, पृथ्वी पे जब वो फैलता है तो फैलने के बाद वो रूप जो है जब ठंडा हो जाएगा तो वो राख का रूप लेता है, चट्टान का रूप लेता है और वो आग्नेय सेल बनता है. क्लियर है? नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री मीन्स अवसादी सेल. अब अवसादी सेल क्या होता है? अवसाद मीन्स कह सकते हैं कि
ढेर या कूड़ा कचरा, जैसे मान लीजिए कि आपने नोटिस किया होगा बरसात के दिनों में जब बारिश ज़्यादा होती है तो नालियों में पानी बहता है, ठीक है, और उस पानी के बहने से पानी के साथ साथ नालियों में बहुत सारी गंदगी बहती है और कहीं ना कहीं एक जगह जाके वो लग जाती है। लाइक दैट, सेम इसी प्रकार से जो अवसादी सेल होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, ये क्या होता है, ये हवा से या पानी से, हवा से बुड़ के निकलता है और पानी से बुड़ के फिर जाके जहां एक जगह चिपकेगा और वो एक सेल का रूप लेता है, इसीलिए इसका नाम कहा गया अवसादी सेल। एंड द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये है रूपांतरित, नाम से क्लियर हो रहा है, रूपांतरित यानी इसका नाम रूप जो है बदला हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ये आग्नेय सेल और अवसादी सेल के मिलने से ये बनता है, क्लियर। सो मेटामॉर्फिक। अब बुक से आप देखें इसका मतलब। So, when the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rock. They are so called primary rocks. क्योंकि ये सीधा सीधा आग से बनते हैं इसलिए इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स। They are two types. First one intrusive and second one extrusive. Intrusive and extrusive दो प्रकार के होते हैं igneous rock, okay? So can you imagine lava coming from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out of the interior of the earth on its surface. When this molten comes to earth's surface, it rapidly cools down and become solid. जब वो अर्थ सरफेस पे आता है अंदर से निकलने के बाद, ठीक है, वोल्केनो से या ज्वालामुखी से, तो वो सरफेस पे आने के बाद कूल डाउन होता है, ठंडा होता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक, यानी कि जो जमीन से बाहर आ गया। देखिए इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, और इन और एक्स का मीन्स क्या होता है आप समझ सकते हैं, ठीक है, इंटर, ठीक है, इन मीन्स इंटर और एक्स मीन्स एग्जिट, समझते हैं, इंटर करना और एग्जिट करना, तो ये इंटर और ये एग्जिट इस सबसे बना हुआ है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो जो है जो मगमा जमीन से बाहर आ जाएगा, पृथ्वी से बाहर एग्जिट हो जाएगा, निकल जाएगा, उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक कहते हैं। क्लियर हुआ? एग्जिट मीन्स जमीन से बाहर निकलना, तो जो जमीन से बाहर निकल गया मगमा, ठीक है, उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक कहते हैं, और जो जमीन के अंदर ही रह गया उसे इंट्रूसिव इग्नेयस रॉक कहते हैं। ओके, तो दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बासाल्ट, इसका एग्जाम्पल जो है बासाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ बासाल्ट रॉक। समटाइम्स द मॉडर्न magma cools molten magma cools down inside the earth crust। मैंने इससे बोला कि जो बाहर आ गया वो तो एक्सक्लूसिव हो गया, लेकिन कभी कभी मगमा बाहर नहीं आता है और अंदर ही कूल डाउन हो गया, और जो अंदर ठंडा हो जाएगा मगमा उसे हम इंट्रूसिव मगमा के नाम से जानेंगे। ओके, इंट्रूसिव इग्नेयस रॉक, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट आपने देखा है जो घरों में यूज होता है फर्श वगैरह के लिए, ग्रीन कलर का होता है ग्रेनाइट, तो वो जमीन के अंदर सूखता है, इसलिए हम उसे इंट्रूसिव इग्नेयस रॉक कहते हैं। फाइन एग्जांपल इज ग्रेनाइट। रॉक्स रोल डाउन, फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर हियर। इग्नेयस रॉक क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि इग्नेयस रॉक या आग्नेय सेल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ज्वालामुखी के विस्फोट से, या आप सीधा कर सकते हैं कि अग्नि से बनने वाला जो रॉक है, जो रॉक आग से बनता है, वो आग्नेय सेल होता है या इग्नेयस रॉक होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन होगा कि ये आग आती कहां से है, तो ये आग है क्या, ये धरती के अंदर, जमीन के अंदर, ओके, धरती के अंदर से जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वोल्केनो, तो वोल्केनो के मुंह से जो बाहर निकल जाएगा मगमा, वो बनेगा आपका एक्सट्रूसिव
इग्नेयस रॉक, और जो जमीन के अंदर ही रह जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो बनेगा इंट्रूसिव इग्नेयस रॉक। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया? आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, सेकेंड वन सेडिमेंट्री रॉक। मैंने बोला अवसादी सेल, अवसादी क्या होता है? कूड़ा कचरा जमा होना, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए क्या है ये। रॉक्स रोल डाउन, पहाड़ टूटते हैं, नीचे गिरते हैं, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब पहाड़ या पत्थर एक दूसरे में टकराते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं। ओके, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट, और इन छोटे छोटे कणों को हम सेडिमेंट कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर etc। मैंने बोला पहले, या तो हवा से या तो पानी से ये बहा के या उड़ा के ले जाए जाएंगे। These loose sediments are compressed and hardened in the form of layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. Okay? तो ये जो rocks हैं ये बनेंगे sedimentary rocks. For example, sandstone is made of grains of sand. देखिए एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल जो है ये सैंडस्टोन, ठीक है। एग्जाम्पल जो है सैंडस्टोन रहेगा, ठीक है। अब इसमें इग्नेस में फर्स्ट वन था, अगर आपका एक्सट्रूसिव अगर कर दिया जाए यहाँ पे, तो एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या होगा? और बसल्ट, यस बेसल्ट, इसका एग्जाम्पल जो है ये बेसल्ट है। और इंट्रूसिव का इसका सेकंड जो पार्ट है ये इंट्रूसिव, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ग्रेनाइट। तो आप एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते चले, ठीक है। इग्नेस रॉक में दो प्रकार होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। इसका एग्जाम्पल हो गया बेसल्ट और इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल हो गया सैंडस्टोन। ओके, नेक्स्ट बेटा थर्ड वन, इग्नेयस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि मैंने पहले बोला इग्नेयस और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। कैसे बनता है? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, यानी कि अत्यधिक गर्मी मिले या अत्यधिक दबाव पड़े तो ये अपना रूप बदल देता है, रूपांतरित अपना रूप बदलता है और ये बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जो क्ले होता है, स्लेट आपने देखा होगा जिसे कहते हैं कि मिट्टी की स्लेट ब्लैक कलर की आती है, ठीक है। तो क्ले जो है ये चेंज होता है स्लेट में। जिस स्लेट पे आप लिखते हैं, छोटे बचपन में लिखे होंगे आप लोग, ठीक है। क्ले चेंज हो गया स्लेट में। और सेकंड एग्जांपल इसका हो जाएगा आप लोगों का लाइमस्टोन हो जाएगा मार्बल में, ठीक है। लाइमस्टोन इनटू मार्बल। One more request, beta. Maybe some spelling mistakes will be occur there. I am not saying that. If is there anything, then forgive me for that. Okay. So मैंने बोला कि मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल दो मिले आप लोगों को, स्लेट और मार्बल। लेकिन अगर पूछे स्लेट आता कहां से, तो आप बताएंगे क्ले चेंज इनटू स्लेट, ठीक है। ये कैसे बनेगा? ये हीट से बनेगा, ठीक है। ये बनेगा हीट से। और लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, दैट विल फ्रॉम प्रेशर। मैंने बोला हीट एंड प्रेशर, आप इस चीज को भी जानते रहिए। ये हीट, ये गर्म किया जाएगा और ये प्रेशर से यानी दबाया जाएगा। क्लियर है? अब आपने रॉक्स को देखा, रॉक्स होते क्या हैं। अब रॉक्स के यूज क्या हैं, क्या क्या प्रयोग हैं उनके। तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज टू मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, एंड यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, जिसे हम गांव में पिट्टो कहते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा या समझा होगा पिट्टो। 7 छोटे छोटे पत्थर रखते हैं, उसको एक गेंद से निशाना लगाते हैं, ठीक है। और
बिना गेंद आपके शरीर पे लगे हुए उन सारे पिट्टोस को फिर एक बार सजाना होता है। ये गेम पिट्टो होता है, बढ़िया गेम होता है, बच्चे खेलते हैं इसको। 5 स्टोन जिसे गिट्टी कहते हैं, 5 स्टोन, ठीक है। बच्चे ऐसे दूर तक मार मार के ले आते हैं एक ही बच्चे को, ठीक है, गिट्टी के माध्यम से, बच्चे को नहीं, गिट्टी से। एंड you will also be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner। यानी कि एक स्टोन दूसरे स्टोन में एक साइक्लिक मैनर, एक चक्र के रूप में परिवर्तित होता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। और जो ये चक्रण है, जो प्रक्रिया है, इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies and become igneous। मैंने पहले बताया कि जब गर्म लावा पिघलता है, ठंडा होता है, तो वो क्या बनता है? इग्नेयस, आग्नेय बनता है। आफ्टर दैट दिस इग्नेयस रॉक ब्रोक इनटू पीसेस। ये जो इग्नेयस रॉक है, ये हवा से या पानी से छोटे छोटे कण में टूटता है, और टूटने के बाद क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक बनता है ना, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और इन्हीं दोनों रॉक्स के माध्यम से चाहे अत्यधिक गर्मी हो जाए या अत्यधिक प्रेशर डाल दिया जाए, तो ये चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ये रॉक साइकिल है, ये कंटिन्यू एक दूसरे को फॉलो करता रहता है। सो बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को दोबारा इस प्रकार की कोई दिक्कत न आए कि आप लोगों को कोई पूछे कि रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल्स कैसे आते हैं, या रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, आप बताने में असमर्थ हो। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से समझें और बताने की कोशिश करें। थोड़ा सा इसमें मिनरल्स का पार्ट बच रहा है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स में क्या होता है? रासायनिक कंपोजिशन, यानी कि गुण होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ जो है फ्यूल में यूज होता है। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जो आप लोग देख रहे हैं, पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं वगैरह वगैरह। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, etc. ओके, सो आफ्टर दैट इन मेडिसिन एंड इन फर्टिलाइजर्स आल्सो, यानी कि इनका प्रयोग जो है दवाइयों में और फर्टिलाइजर्स में, यानी कि जो रासायनिक छिड़काव होता है आपके खेतों में, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उनके में भी इसका प्रयोग होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू ऑल हैव लाइक दिस, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस